Good evening, all of you. And today a very special person is here, Kanika Goyal, and she has secured 9th rank, All India 9th rank. And since the result is out, she is so much engaged, phone pay phone. And she has taken time. I said, ki students want to meet you and want to share, like you share is your strategy with her. So I most probably, she has a program tomorrow in Sunset TV. Okay, so here is she, and I don't think we should be wasting much time. So first of all, congratulations on behalf of all of us. And this is a small gift for you to read if you get a free time. Okay. Fine. Just, so now Kanika is here. Please take the tips if you want. Yes, Kanika, if you have any message, you can give to them. You can just put it here. Yeah, Ahmed. So message to you all would be that it's consistency, it's confidence, smile, perseverance, and luck that works. So being here, I can't say whether I deserve to be here or not, but I ensure that I do my best for the goal which I had set so early in my life, with the dream which I had set for myself. Just work harder. Even if you don't make it to civil services, you can make it to some other sphere. So every person is unique, as Dr. APJ Abdul Kalam do put it. We are unique in our own self, and we don't have to be like somebody else. So just ensure that you do your best for yourself. You are ensuring, Aristotle की एक analogy है, potentiality actuality वाला एक relation होता है, उसको मैं बहुत relate करती हूँ कि हर एक बीज में एक पोटेंशियल है एक पेड़ बनने का. सो और जब वो पेड़ बन जाता है वो एक्चुअलिटी में कन्वर्ट हो जाता है. तो कन्वर्ट योर पोटेंशियलिटी टू द एक्चुअलिटी एंड दैट वुड वर्क. Kanika has been political science student even in her graduation. And I always say that this particular subject has an importance that goes beyond scoring the marks. It makes a very positive impact on the personality. And I always see that political science students are smarter. पहचान लिया तो इसका सोशियो होगा, इसका मतलब इसका पॉल साइंस होगा, ये इसके बस का नहीं है पॉल साइंस, ऐसा लगता है उसे. ठीक है. So I think it's very important if whatever thinkers you read, if you can imbibe. मतलब यही तो knowledge है. That is like if you can imbibe, you can learn a lot of things from these philosophers. So if you have any questions you want to ask, because आपके questions रहेंगे तो she will be also in a better position to answer, because बाकी तो सब काफी general रहता है. Does anybody want to ask question? Yes. Otherwise, आप बता दीजिए. Yes. ये दे दीजिए mic वैशाली. I covered it from PSIR only. So for PSIR to say, IR वाला portion I did it from ma'am's notes. उसके बाद crash course से मैंने उसे relate किया. समझ में आया ना क्रैश कोर्स का इम्पोर्टेंस. देखो क्रैश कोर्स के दो फायदे होते हैं. एक तो आपका प्रिपरेशन होता है, फाइन, और दूसरा फायदा होता है कि आपके साथ मुझे थोड़ा और समय मिलता है. I don't want to miss my students. तो हम सोचते कोई ना कोई रीजन रहना चाहिए इनको अपने साथ रखने का.
और कुछ? So ma'am, आपने basically like for revision short notes वगैरह तो I'm sure you must have. अरे उसके लिए तो इनके एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं, आप आइए प्लीज, इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बताओ तुम। तो ये भैया है, ये काम करते हैं पापा के साथ। इन्होंने क्या किया, मैंने जो नोट राम के लेक्चर के नोट थे, आई हाईलाइटेड ऑल ऑफ द नोट्स, और इन नोट्स को मैंने भैया को दे दिया। उन्होंने सब नोट्स को टाइप किया, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि PSIR के आंसर्स में आप जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसे ऐड कर रहे हो। तो जो 18 बुक्स थे वो दो फाइल्स में कन्वर्ट हो गई, और वो भैया ने किया। Probably for both 150 pages for both the papers. And the other thing was, ma'am, were there any other books or resources that you referred to just for in addition to what ma'am has provided? I think newspapers, nothing more than that. That's it. That's it. So, okay, thank you. Thank you. यस, एक मिनट, क्वेश्चन सो दैट ऑनलाइन वालों को Yes. नहीं पड़ेंगे। Excuse me, ma'am. When you started to answer writing, like after completion of the syllabus or in between of the syllabus, like we have a crash course here, like answer writing from it's going on, and it's after completion of the subject. Then what's the right time to start on? I'd like to take both the questions together. So for answer writing matters a lot, because with answer writing you actually get to know how you are expressing, which all words are coming. I used to write answer when I used to revise ma'am's notes. तो आंसर लिख लेती थी या रफ सा एक स्केच बना लेती थी कि इस तरीके से फ्लो रहना चाहिए चीज़ों का। ऑल्सो मैम कुछ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, तो वो पोर्टल पे अपलोड की हुई थी, तो उसके आंसर्स भी मैंने शुरू में लिखे हैं। बट देन मेन आंसर राइटिंग आपकी क्रैश कोर्स के साथ ही होती है, जिसमें मैम ने चलिए, और यस, First of all, ma'am, congratulations to you. थोड़ा साफ बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन सकते हैं। Ma'am, first of all, congratulations to you. थैंक यू। Ma'am, for non-pol science background students, to get through the terminologies of political science and to begin the process of answer writing or putting it on the paper, the concepts, the ideas we visualize, how to break that stigma at the initial level, like of going into the process of answer writing. So I'll say for non-pol science students, मैम बहुत सिंप्लीफाई कर देती हैं पॉलिटिकल साइंस। Yeah, that's. तो मैम के नोट्स हो या मैम के लेक्चर्स हो, वो पॉलिटिकल साइंस नॉन पॉलिटिकल साइंस का डिफरेंस खत्म हो जाता है वहीं पे, व्हेन यू स्टार्ट रेफरिंग हर नोट्स, बिकॉज बहुत सिंपल तरीके से वो बेस से ही शुरू करती हैं कि कोई भी समझ सकता है। तो टर्मिनोलॉजीज अपने आप समझ आने लग जाती हैं। ऑल्सो व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल है, यू गेट दोस टर्मिनोलॉजीज, और जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो you actually start imbibing those terminologies, so वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग कि हाँ ये टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए मेरे आंसर में, थोड़ा एक कॉन्शियस आपको होता है कि हाँ टर्मिनोलॉजी मुझे उठानी है यहाँ से और अपने आंसर में डालनी है, दैट वर्क्स। Thank you. एनी अदर क्वेश्चन? तुम्हारा हो गया? अच्छा, सवाल सब्जेक्ट को लेके नहीं है, आपकी वेबसाइट को लेके। वाह 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 वाह, और आपकी सादगी यकीन में नहीं आ रही इनको। मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि क्या मैं इतनी डिजर्विंग थी कि मुझे ये रैंक मिल गया। I wasn't expecting this. There are 66%. नहीं, but I think you were always deserving. She has been a topper in 12th. She has been a student of LSR. So I don't think there was ever any question that you were not deserving. So you have been performer throughout the year, throughout your career. I'm just So question था ही नहीं. I'm just fortunate to my parents, to God, to relatives, to my grandparents for whatever I have achieved. I don't know. I think मेरा तो 10% contribution होगा. बाकी तो सबका साथ है जिन्होंने contribute किया है. 10% क्या आप जानना चाहते हैं? 10% is consistency, perseverance, and a belief in yourself. मैम क्वेश्चन यहाँ लास्ट से, माइक देते हैं.
हेलो मैम, हाँ यहाँ लास्ट से क्वेश्चन है। हाँ 4 पॉइंट्स पे क्वेश्चन है, 4 छोटे पॉइंट्स। पहला, अबाउट योर एटीट्यूड टुवर्ड द एग्जाम इन दिस लॉन्ग जर्नी, व्हाट वाज इट, हाउ डिड यू मेंटेन इट एंड व्हाट फ्लक्चुएशंस डिड यू फेस? सेकंड, एंजाइटी से आप कैसे डील करते थे? जब भी पूरे साल एंजाइटी होती थी, कैसे करते थे? थर्ड, what is smartness for you? How do you define it? How have you experienced it? And fourth, how did you prioritize things? That's it. Yeah, very relevant questions, I think, very relevant questions. So, can you repeat the first question? Attitude. Yeah, but I think these are the common concerns. Yes, please. Yes, चार नहीं, आप एक एक बोले जिससे कि आंसर मिस नहीं हो. First is attitude. Your attitude in this whole journey. What? Attitude towards the exam. To define it, I'll say I told myself, Kanika, you are not born to stop. So that was my attitude towards the exam. And I'm born to conquer, to fly high and high. And this was one of the feats that I had decided for myself in my life, that I'll be an IAS officer. Whenever someone used to ask me, I didn't say I want to be an IAS officer or I aspire to be an IAS officer. Rather, I said that I will be an IAS officer. Wow. So this was the attitude that I had imbibed in myself. Anxiety, say, अगर anxiety होती थी, so I think my mother's hug used to solve it all for me. और अगर ज़्यादा हो रही है तो पापा के साथ राइड पे निकल जाती थी, तो उससे एंजाइटी अपने आप फेड हो जाती थी. आपका थर्ड क्वेश्चन क्या था? Smartness. What is smartness for you in this preparation? Smartness in the preparation. Yes, smartness क्या है आपके लिए इस preparation में? मतलब smart preparation you want Yes, to know? yes. Smart preparation and selective preparation. Yes. That you select your sources and repeat them again and again. Also, you know where and which thing is going to work as a value addition for you. ये नहीं है कि आप बहुत एक बुक पूरी आप पढ़ रहे हो क्योंकि उससे आपने 4 पॉइंट उठा के वैल्यू ऐड करना है. स्मार्टनेस इज CB एनालिसिस व्हिच आई कॉल, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आपको हर सिचुएशन का चलना है. इवन डिसीजंस यू आर मेकिंग इन योर लाइफ एंड स्पेशली फॉर दिस प्रिपरेशन, एक CB एनालिसिस को रखिए कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या रहेगी इस चीज की जो मैं करने जा रही हूँ, एंड दैट डिफाइंस स्मार्टनेस. एंड योर लास्ट क्वेश्चन प्लीज. Prioritization in life. Prioritization means GS, optional, या work, क्या prioritize? Yes. Prioritization in life in general or in exam, because you are managing the exam as well as your life together. Managing life and exam मतलब पढ़ाई और बाकी social और बाकी चीज, जैसे इनका ज्यादातर टाइम थोड़ा सोशल मीडिया पे चला जाता है. व्हाट्सएप एंड ऑल को कैसे मैनेज करते हैं? बंद करके. अच्छा, बंद करते हैं. यस, आई थिंक सोशल मीडिया जितना बंद किया उतना अच्छा है. What it's very disturbing all the time. Yes, इनका mic लियो. You want to just share some experience of interview, any questions? How was the environment? Whose board it was? I had Lieutenant General Shri Raj Shukla sir's board. The environment was very cordial. A few of the members were also smiling. But I was a lot anxious that day. Also, I was not health के तौर पे भी इतना सही सा नहीं लग रहा था, थोड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही थी. But then I scored around 180 in the interview. तो ठीक है स्कोर, but I was looking forward to have a 200 के अराउंड स्कोर जाए. बट अब रैंक 9 आ गया, बहुत कुछ नहीं चाहिए. कुछ ऐसे मतलब इंटरव्यू का कुछ स्पेशल प्रिपरेशन तुम्हें लगता है किया जाना चाहिए, या लेट इट गो जो डेली है अपना न्यूज़पेपर, या एनीथिंग स्पेशल दैट पर्सन शुड डू? As I said, I was looking forward to increase. So in interview, I had the matrix for all the papers I need to increase my marks in. And interview was also one of them. So I scored around 160 and I was looking for 200. So 40 marks को मुझे bridge करना था. And I divided the things. Haryana, I'll be preparing it. I used to have discussions regarding Haryana. Then current affairs, there was a group of students with whom I was connected. So I used to discuss current affairs with them. PSIR also I discussed, revise the notes and all. And मतलब ये इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बोलना है वहाँ जाके बोर्ड पे, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो. इंटरव्यू से पहले मेरे रूम में शीशा नहीं होता था.
क्योंकि शीशा भी डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। तो इंटरव्यू के टाइम आई गॉट अ मिरर इन माई रूम, तो उसके सामने बैठ के भी प्रैक्टिस करो, आप कैसा बोल रहे हो, कैसा लग रहा है, इज इट आप फंबल तो नहीं ज़्यादा कर रहे हो, आप ये तो नहीं दिखा रहे हो कि आप एक सही तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाओगे अपने जिस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हो उसके थ्रू। सो ऑल दैट प्रिपरेशन, आपकी पर्सनैलिटी पे आपको काम करना होता है, आपके सब्जेक्ट पे काम करना होता है, डाक पे काम करना होता है, हॉबीज जो आपने लिखी हैं उन पे काम करना होता है। इट रिक्वायर्स होलिस्टिक प्रिपरेशन। नॉर्मली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के इश्यूज रहते हैं हाउ टू रिवाइज द थिंग्स, है ना, कि रिवीजन कैसे, सिलेबस बढ़ता जाता है, नॉलेज। तो एनीथिंग ऑन दैट यू वांट टू टेल? रिवीजन स्ट्रेटजी। नोट्स बनाइए रिवाइज करने के लिए। हमने बताया बनाने की। ओ भैया को पकड़े के पास की है। नोट्स बनाइए एंड रिवाइज करिए। नोट्स भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो इंडेक्स ले लो। मैम की लेक्चर का एक इंडेक्स था मेरे पास, मैं अगर नहीं कुछ पढ़ पा रही हूँ तो मैम के लेक्चर का इंडेक्स खोल लेती थी, उसमें हेडिंग होती थी कि आज की लेक्चर का ये टॉपिक था, तो रिकॉल किया करती थी कि इस लेक्चर में मैम ने क्या क्या पढ़ाया था और इस टॉपिक से क्या क्या है। तो रिकॉल स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू टेक अ पेपर, अगर आपको रिवाइज करना है, याद करना चीज़ों को, लिख दीजिए जो भी पढ़ा है, जिस भी टॉपिक को रिवाइज करना है। सो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कैन वर्क। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। लक्ष्मीकांत जितनी बार रिवाइज करनी है उतनी बार करिए। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी टू से, अगर मैं एक जीएस का एग्जाम्पल लूँ, वो बुक मतलब एक बड़ी टिपिकल सी बुक है और बड़ी एक सेंट्रल बुक है, और लेकिन उस बुक को जब आप समझने जाते हो तो 4-5 बार तो उसे समझने में ही लग जाता है, तो 10-11 बार उसे मैंने शायद रिवाइज किया होगा। तो इसी तरीके से रिविजन इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक थिंग, और आपको करनी होगी अलग अलग तरीकों से। एक तरीका नहीं काम करना, ये नहीं है कि एक नोट्स बनाए हैं वो नहीं पढ़े जा रहे, नोट्स को पढ़िए अगर आपने बनाया है, यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम इन दैट। बट अगर रिकॉल आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू, एक प्लेन पेपर पे लिख के, केवल बैठ के सोच के कि आपका आंसर कैसा होगा, दैट ऑल्सो वर्क्स टुवर्ड्स रिविजन आई थिंक। एंड लाइक प्रीलिम्स, क्या प्रीलिम्स है? प्रीलिम्स इज वेरी डायनेमिक, मतलब पैटर्न कीप ऑन चेंजिंग, तो वो सबके लिए चेंज हो रहा है ना। फिर भी मेरे हिसाब से बेस अप्रोच तो वही है, आपको बेसिक पढ़ना चाहिए, आपको करंट पढ़ना चाहिए, और डिफरेंट क्वेश्चंस एक्चुअली इमेजिन करके या प्रैक्टिस जितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए। बट नाउ कनिका विल प्रीलिम्स के लास्ट दिनों में अगर आप प्रीलिम्स अपीयर होने जा रहे हो और रिजल्ट आ गया तो प्लीज टॉपर टॉक्स मत देखना। न्यूज़पेपर्स में भी टॉपर्स की वो ना देखना कि क्या छपा है, कैसे है, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी, दैट डजंट वर्क। प्रीलिम्स में आपने जो तैयारी की है उस टाइम उस पेपर में बहुत काम एटीट्यूड से, बहुत क्लैरिटी से उस पेपर को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू कैन अप्रोच द पेपर इवन इफ, बिकॉज यू हैव रिवाइज द जीएस, यूपीएससी डजंट डिमांड facts from you, it demands that clarity in your head, how you can understand the concepts, how you can understand the things। और अगर आपने उन्हें समझा है तो प्रीलिम्स में अगर आप काम माइंड से जा रहे हो तो आप उसे टिक करके, एलिमिनेट करके, अलग अलग ट्रिक्स लगा के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। वो मैंने रियलाइज किया 7 महीने एक बार प्रिपेयर करने के बाद प्रीलिम्स के लिए, और 5 दिन में प्रीलिम्स निकाल के, और जो 5 दिन में निकाला उसमें 7 महीने वाले से ज़्यादा मार्क्स आए। तो अलग हो सकता है, बट यस प्रीलिम्स को लाइटली नहीं लेना है। प्रीलिम्स में काफ़ी बच्चे रह जाते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आप जो सोर्सेज यूज़ किए हैं उन्हें स्टैटिक रखिए और उनको आप रिवाइज करते रहिए। अगर पूरी रेफरेंस बुक्स या फिर सोर्सेज पॉलिटिकल साइंस या फिर नहीं? I didn't refer any source for political science other than Rajkot. Of course. I had my honors in political science, तो जो कॉलेज के नोट्स थे उनमें से मैंने हाईलाइट कर लिया था और दोबारा फिर उन्हें टाइप करा लिया। मैं नहीं बोलती हूँ, बच्चे पूछते तो बताना होता है। पहले ये हो जाए, इस पे आपको बिल्कुल कमांड दो, तब आप एक्स्ट्रा पढ़े। जब यही नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, जो पढ़ा उसका यूज कर पाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूज ही नहीं कर पा रहे तो पढ़ के आई डोंट थिंक कि कोई फायदा। और ये सब्जेक्ट कैसा है, कंसेप्ट आया तो एक ही बार में आएगा, किसी और बुक में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होगा, और बहुत फैक्ट्स की तो वैल्यू नहीं है ना, कॉन्सेप्ट की वैल्यू। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो देयर इज नो नीड, आप
प्रिपरेशन में खुद ही यू हैव टू से नो कि इसके बियॉन्ड नहीं देखना है, वरना आप कवर नहीं कर पाओगे चीजें. बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यू विल हैव टू डू जस्टिस विथ योर जीएस पेपर ऑल्सो. ठीक है, तो अगर आप डेप्थ में जाओगे तो आप एक्सटेंशन में नहीं जा पाओगे. तो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, और साथ में कॉन्फिडेंस कि आप मुझे समझ में आया ना, दिस इज जैसे आप पढ़ा दिया मान लीजिए इंडिया चाइना, तो तुम्हें खुद को ये मेंटली समझाना पड़ेगा कि आई विल बी एबल टू हैंडल एनी क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली माइंड और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो रोल प्ले करता होगा. व्हाट डू यू से? I'll totally agree with you. खुद को आपको समझाना पड़ेगा कि इतने से मेरा बहुत, आई कैन डू मोर देन व्हाट आई हैव लर्न. उसी से कितना हम नेटवर्क कर सकते हैं, कितना हम उसको और ज्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो सब मतलब स्किल भी है ना. पढ़ना से भी ज्यादा स्किल इम्पोर्टेंट. मैम के बेस के बाद आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, बिकॉज मैम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती है. उन कॉन्सेप्ट्स को आपको दूसरी बुक्स में नहीं ढूंढना पड़ता. अब आपको समझ आ जाता है कि ये ऑथर अगर ये बुक लिख रहा है तो इस बुक में ये निकलेगा. आप बुक का नाम उठा सकते हैं, ऑथर को उठा सकते हैं और अपने आंसर्स में डाल सकते हैं. स्मार्ट वर्क हो जाएगा. आपका क्या? What was your approach towards newspaper and current affair magazines? I used to read the newspaper. सुबह सुबह छोड़ा नहीं करती थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी. और रिकॉल वाली हमने स्ट्रैटेजी जो बताई, तो न्यूज़पेपर के ऊपर ही जो ऊपर वाला पेपर होता था उसी पे रिकॉल करके एक बार ऐसे ही रफली लिख लिया करती थी जो जो पूरे न्यूज़पेपर में आज के दिन में आया है. एंड दैट्स इट. बट अगर हो पाता था तो अगर न्यूज़पेपर्स में मैं दोबारा जा पाती थी तो उनमें से सर्कल कर लिया करती थी कि हाँ ये चीज़ें मैं निकाल सकती हूँ, और उन्हें टाइप करके या फिर लिख के कहीं उनको फिर आंसर्स में मैंने कोट किया. The end of the year, like when you have got 1 years, like how do you revise the previous things, previous magazines, previous current affair that come along? आई थिंक अगर नोट्स बनाए हैं तो उनसे कर लीजिए. बार बार पिछली चीज़ मत उठाइए. पिछली चीज़ क्योंकि उठाने लग जाएंगे तो आपको लगेगा ये कैसे भूल गई मैं. तो ये बेटर है कि आप पिछले मत जाइए, जो नया चल रहा है, जो आपने अगर नोट्स बनाए हैं उसे कवर कर लो, वरना रियली कंपाइलेशंस के थ्रू कर लो, वरना जो कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, उनके थ्रू आप उस चीज़ को कवर कर सकते. मेरे हिसाब से जब पहली बार पढ़ो तभी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिवीजन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं. इतना चीजें होंगी ना, आप रिवाइज कर ही नहीं पाओगे. तो जो रजिस्टर हो गया दिमाग में, और एक उसके साथ ये भी होना चाहिए कि इसको किस चीज से लिंक करके मैं याद रख सकता हूँ. राइट, तो वो थोड़ा सा टेक्निक्स होनी चाहिए, वरना ये फैक्ट है आप रिवाइज नहीं कर सकते. 5-6 महीने पहले आपने पढ़ा वो और बिल्कुल नया लगने लगता है. तो पहली बार में ही कंसेप्ट बन जाना चाहिए. प्रीलिम्स में क्या है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी वही है. तो अगर आपने कंसेप्ट बनाया, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे. फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं होगा. ठीक है, और इनको बता दूं 5-6 पेपर पढ़ने या एक पेपर आप पढ़े, मुझे भी लगता है, मतलब आई थिंक जो ट्रेडिशनल है हिंदू ही पढ़ा तो बहुत है ना. साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स, करंट अफेयर्स, नथिंग एल्स. क्रैश कोर्सेज कुछ थे अवेलेबल, उनसे कवर किया. CSAT I didn't prepare, and if people want, they should be preparing. ह्यूमैनिटीज वालों को कर लेना चाहिए, बट मैंने CSAT नहीं प्रिपेयर किया. एक बार 4 दिन में दिया, एक बार 2 दिन में दिया. तो सब्जेक्ट, आई थिंक यू मीन टू से जीएस एंड ऑप्शनल या सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे वन. जीएस में वो तो आई डोंट रिमेम्बर, बट जब मैंने सोर्सेज डिसाइड कर लिए थे कि ये सोर्सेज होगा, तो वो बुक को पहले एक बार कवर किया. अगर लग रहा है कि उस बुक में चीज़ें याद नहीं रह रही है तो उसे दोबारा रिवाइज किया. तो इस तरीके से आई यूज्ड टू डू कि अगर लग रहा है कि मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, या उसके नोट्स जो बनाए हैं वो उसके हिसाब से मुझे एक बार दोबारा बुक के पास जाना चाहिए, बुक को पढ़ना चाहिए, देन आई यूज्ड टू रिवाइज. तो उसी हिसाब से प्लान बना लेती थी. महीने में बनाया प्लान, या प्लान चेंज करना पड़ा था, आई यूज्ड टू मेक अमेंडमेंट एज वेल, चेंज करा कर. जी, पहले मैंने शुरू में डिसाइड कर लिया था कि इतने दिन में ये वाली एक सोर्स है श्रीराम IAS की इकोनॉमी के नोट्स, अगर मैंने जैसे इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ किए तो इतने दिन में मैं इन्हें कवर करूंगी. लक्ष्मीकांत को इतने दिन में कवर करूंगी.
बट ये नहीं था कि मैं एक ही बुक को पूरा टाइम लेके बैठी हूँ कि इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ रही हूँ, वो बोर हो जाते हो। तो बेटर है कि इकोनॉमिक्स एक दिन पढ़ लिया, अगर एक दिन भी नहीं, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ पा रहे हो, आधे दिन इकोनॉमिक्स पढ़ा, माइंड चेंज करना है, ज्योग्राफी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, मतलब माइंड को ऐसा करा कि आप पूरा टाइम मोड में रहो ऑफ प्रेपरेशन व्हेन यू आर चेंजिंग द वे यू आर स्टडिंग द थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग एंड कंप्लीट द थिंग्स दैट हैव बीन डिसाइडेड। तो बुक लिस्ट को मैंने चेंज नहीं किया बार बार। जैसे पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ आते हैं मैथ्स जैसे, बट मैम जैसे सोल कंसेप्ट्स हैं उनको कनेक्ट करना या फिर जो बिगर पिक्चर है वो कैसे दी जाए कि जैसे कोई थिंकर है तो ये जो थियरीज दे रहा है वो समझ आ रही है, बट ये थियरीज को रिलेट कैसे करें? क्रैश कोर्स में होता है ना वो, आई थिंक वी डू इन क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स में आप सीख जाओ। क्रैश कोर्स में भी करते हैं, उसको मैम जब समझाते हैं मैम बेस से शुरू करते हैं। सेक्युलरिज्म मैम समझाएंगे तो मैकियावेली पे लेके जाएंगे आपको एक बार, तो बेस से ही मैम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बिगर पिक्चर आपकी वहीं से आ जाती है, और खुद का थोड़ा सा एफर्ट तो डालना होगा, और क्रैश कोर्स वर्क्स। One or two questions in interview which you remember? Questions were diverse. I remember the whole of my interview. अच्छा, So it started मतलब तुम्हारे जैसे पॉलिटिकल साइंस से कितना था, बिकॉज तुम्हारा बैकग्राउंड भी है ना। last time in my interview it was a lot more from political science, Russia-Ukraine war, and how I interpret national interest for a nation. This time it was a little less, but panelists did ask me about balance of terror and how I relate it in the current situation. Also Machiavelli और Cotilla में कैसे differentiate करते हो, काफी basic questions। तो ये दो questions political science से। और कुछ ऐसे नॉर्मली वुमेन रिलेटेड इश्यूज हमेशा पूछते हैं या नहीं जरूरी है, मतलब से ट्रेंड है मुझसे कि कुछ खास नहीं पूछा। मेरा इंटरव्यू हरियाणा पे ज्यादा चला गया था, तो गुड़गांव की आप डीसी हो तो आप क्या करोगे, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के लिए हरियाणा क्या कर रहा है, और कुछ फिलोसफिकल भी चला गया था। अमृतकाल का भी जिक्र आया था। फिलोसफी व्हेन चेयरमैन सर आस्क्ड मी कि आप अगर आपने कोई इंस्पिरेशनल कोट या पोएम पढ़ी हो तो आप कोट कीजिए, and I quoted Rumi's where I had read it in Dr. APJ Abdul Kalam's book, जहाँ पे उसमें वो लास्ट में कहते हैं I'm not meant to crawl, I'll fly, fly and fly। and वहाँ पे चेयरमैन सर ने कहा कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हो। एक शेर है गालिब का, उड़ने दो इन परिंदों को आज़ाद हवा में गालिब, जो तेरे अपने होंगे लौट लौट आएंगे तेरी ओर। once more उड़ने दो इन परिंदों को आज़ाद हवा में ए गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे तेरी ओर। मतलब पॉलिटिकल साइंस का हर इंसान जुड़ जाता है ना शायरी से। गुड आई एम वेरी हैप्पी। कंसिस्टेंसी, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, बिकॉज एवरी डे ऐसा कोई ना कोई इशू हो जाता है, या तो डिमोटिवेट हो जाता है या तो हेल्थ इशू आ जाता है, तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती है। तो आप कैसे टैकल करती थी, या आप जब आप ये प्रिपरेशन शुरू करते हो, या कोई भी जर्नी शुरू करते हो, बिजनेस शुरू करोगे, प्रिपरेशन करोगे, हर्डल्स आएंगे, एक्सेप्ट दोस हर्डल्स। आई रिमेंबर हेल्थ इशू के लिए मैं एक बार डॉक्टर अंकल के पास चली गई। मैंने कहा मेरा गला खराब हो रहा है 3-4 दिन से, क्या करूँ? बेटा आपने यूपीएससी का सोचा, ये गले वाले खराब होते रहेंगे। गला आज खराब हुआ है, कल ठीक हो जाएगा, आप अपना काम करते रहो। सो हेल्थ इश्यूज मैटर नहीं करते। हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बट ये नहीं है कि आपको छोटा सा कट लग गया आप पूरा दिन उसी पे निकाल दो और उसे पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहो। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ओवरलुक अ फ्यू थिंग्स व्हेन यू हैव डिसाइडेड अ गोल फॉर योरसेल्फ, टू मेक बिग इन एनीथिंग दैट इज देयर इन लाइफ। मैम एक क्वेश्चन और था कि अभी जैसे हम लर्निंग प्रोसेस में, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक टॉपर और आईएएस के थिंकिंग प्रोसेस में और उनका जो सोचने का किसी भी चीज़ का नज़रिया होता है और हमारे में बहुत डिफरेंस होता है, तो आपने ओवर द टाइम कैसे अपना बिल्ड किया सोचने की कैपेसिटी? बिकॉज हम मैम ने भी जैसे अभी बोला कि मैं देखती हूँ तो बोलती हूँ तुमसे नहीं हो पाएगा पॉलिटिकल साइंस फॉर एग्जाम्पल, या फिर तुम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस ही है और हर लोग उसी तरीके से सोच पाते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर की थिंकिंग में और एक नॉर्मल स्टूडेंट की मतलब क्या डिफरेंस? ये कह रहे सेलेक्टेड स्टूडेंट
और जो नहीं सेलेक्ट हो पाया उसके थिंकिंग में क्या डिफरेंस था? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जैसे चीजों को सोचती हूँ, बट आपका जो सोचने का तरीका है वो आपने ऐसे कैसे डेवलप किया? तुमने अभी खुद को टेस्ट कहाँ किया? अभी आप फेल कहाँ हो गए? हो सकता है आप और भी अच्छी रैंक में आ जाए, मतलब अभी आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? तो पहले से ये क्यों सोच रहे हो? वही मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी कि आई थिंक थिंकिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। थिंकिंग मैटर करती है। व्हेन यू हैव अ विजन, तो विजन कोई भी सेट कर सकता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो। पिछली बार मैं भी नॉन सिलेक्टेड थी, आई फेल्ट कि फेलियर थी, तो अब की बार सक्सेस हूँ। सो मैंने तो नहीं कहा मेरा कुछ सोचने का तरीका अलग था, मेरे दिमाग में एक फितूर था कि आईएएस बनना है, वो आपके दिमाग में भी होगा। तो थिंकिंग आई थिंक इज अ मार्क ऑफ पर्सनैलिटी, एंड पर्सनैलिटी एक पर्सन की होती है, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड आईएएस बिजनेसमैन की नहीं होती है, बल्कि एक लक्ष्य की तरफ होती है जो कि हर इंसान के पास होना चाहिए अपने जीवन में। एंड स्पेशली फॉर अस हु आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 इन दिस अमृत काल। बोलिए। चलो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। First of all, congratulations, ma'am. Ma'am, I want to ask a personal experience. After all the preparation, ups and downs, we all went through all those things in this preparation. How do you see yourself today? आप 3 दिन पहले और आज में आपको क्या फर्क लगता है अपने अंदर, और how people are looking at you, how your family members are looking at you? So, what's your experience after this success? मुझे तो खुशी हो रही है, बट काफी खाली खाली सा लग रहा है कि पढ़ने को कुछ है नहीं, कुछ करने को है। हमने बुक दे दिया तुमको। और तो आई थिंक डिफरेंस नहीं है अब, तो बस अब ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, लोगों को सर्व करना है एज एन आईएएस ऑफिसर, और एक नया गोल डिसाइड हो गया। अब तक एक गोल था वो पूरा हो गया, अब नया गोल डिसाइड हो गया कि आईएएस बन के बेस्ट करना है। सो दैट इज देयर, कीप सेटिंग गोल्स फॉर योरसेल्फ एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक वी शुड ये रहे। हाँ ये कि आप कंसिडर करिए कि आपके पास एक सॉलिड 1 ईयर का टाइम है, अभी से 24 का प्रीलिम्स है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे में अगर आप हमारी जगह पे हो, तो आप एज ए बिगिनर या एज ए एस्पिरेंट, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस एग्जाम के हवाले से, प्री मेंस एज वेल एज इंटरव्यू इंटीग्रेटेड, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ताकि ये एग्जाम 1 साल में मतलब निकाल ही दो आप इस अटेम्प्ट में? निकालना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में था, हुआ नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि तो स्ट्रैटेजी अगर मैं कहना चाहूँ तो ये रहेगी कि इंटीग्रेटेड चलूंगी मैं। आपने जैसे कहा कि 24 के प्रीलिम्स के लिए, जो कि मई 24 में होगा, तो फेब से मैं प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेडली लग जाऊंगी। उससे पहले मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच रखूंगी मेंस और प्री की। सिलेबस जो दिया हुआ है, डिटेल सिलेबस है जो मेंस का, उसी के थ्रू टॉपिक्स को प्रिपेयर करूंगी। प्री के मॉक टेस्ट देती रहूंगी इफ पॉसिबल, स्पेशली टॉपिक वाइज। एंड चेंज दैट आई लाइक टू मेक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं मेंस के भी और प्री के भी दोनों को साथ में रखूं जब मैं एक टॉपिक को कर रही हूँ। दैट वुड बी माय अप्रोच। ऐसे में थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन करें कि मतलब कितना टाइम, मतलब इसके लिए ऑप्शनल एज वेल एज जीएस के लिए डिवाइड करना, फिर उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाना, मतलब ये थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। मैं बताती हूँ, तुम्हें सिलेबस खत्म करना है, टाइम से नहीं। ये तो एफिशिएंसी भी तो लाओगे ना। तो योर ऑब्जेक्टिव इज यू हैव 1 ईयर टाइम एंड यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। हर सारा पोर्शन टच तो करना ही पड़ेगा, और उसके बाद फिर रिवीजन के लिए चाहिए। तो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है, कोई ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कोई कम एफिशिएंट होगा। लेकिन आपका टारगेट है, अगर 1 साल में पूरा सिलेबस ओवरव्यू नहीं हुआ तो फिर आगे मुश्किल होगी, मतलब वो हो सकता है नहीं भी होगी, ऐसा भी है। तो टाइम पे मत जाओ कि कब क्या करना है, क्योंकि हर इंसान का मूड, टाइम, परिस्थिति अलग होती है। लेकिन आपको अपने सिलेबस फिनिश करने पड़ेंगे, और ऐसे रखो ना, कोर सब्जेक्ट पढ़ो, फिर बीच के ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ो जो ओनली मेंस के हैं, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, और फिर प्रीलिम्स वाले सिलेबस पे फिर आना पड़ेगा। चीजें चलती रहती है, मतलब कभी कंप्लीशन की फीलिंग होगी नहीं। या एक इतना अच्छा, मतलब शायद इससे भी बता दो। अच्छा ठीक है, तो वी विल, हाँ हाँ, यस, लास्ट।
में बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कम्प्लीटली ब्लैंक कर देते माइंड को कि पहली बार ही देखा है ऐसा, तो उस क्वेश्चन को कैसे हम टैकल करें उस समय में, लिमिटेड टाइम में? आप क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं आप? हाँ, क्रिकेट खेलता हूँ। खेलते हैं। बॉल आती है, यस। एक ओवर होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, हाँ। तो उसमें जितने भी बार आपके पास बॉल आएगी वही आपका पेपर है। एक बॉल में आपका क्या पता 6 भी लग जाए। 6 भी लग जाए, एक में आपका 1 बने, एक में 0 भी मतलब लगे भी ना, तो उसको एक बॉल की तरह देखना है। आपके पास थ्रो की गई है और आपको अपना बेस्ट देना है। अगर नहीं आता है तो उसे अटेम्प्ट फिर भी आप करके आओ। मेरा तो ये था कि मैं लिखा करती थी, कुछ भी लिखूं, मैं पेपर खाली नहीं छोड़ना। अच्छा, पूरा पेज भर के आए या फिर वर्ड लिमिट? क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि पूरा पेज भर के आना ठीक है कि वर्ड लिमिट में ही लिखना? व्हाट आपने क्या किया? लॉजिकली लिखा, बट आई डिड कीप वर्ड लिमिट इन माइंड, क्योंकि अगर आप पूरा पेज भरने में ही नहीं कर पाओगे सोचोगे तो पेपर ही पूरा नहीं होगा। तो पेपर पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस का मैं बाकी कोशिश कर, यही हो जाता था, चाहे मैं कितना ही सोचूं कि इसे आधे 2.5 पेज में कवर करूंगी एक 3 पेज का आंसर, बट कहीं ना कहीं वो नीचे तक आ ही जाता था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप फोकस करें कि आपके आंसर में क्या कंटेंट है। पेजेस डोंट मैटर।